26 जनवरी یہ تاریخ آسٹریلیا ڈے اس دن منایا جاتا ہے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ یہ آپ کو سکرین پہ ہم دکھا رہے ہیں، یہ جماعت احمدیہ کے ممبرز، اگرچہ یہ والی پوسٹ پرانی ہے لیکن اس سال بھی انہوں نے منایا ہے۔ یہ ہم اس لیے دکھا رہے ہیں کیونکہ یہ ان کی گھر کی اپنی نیوز سورس ہے، ربوہ ٹائمز، تو یہ دکھا رہے ہیں تاکہ یہ تسلی رہے کہ ہم کوئی اپنی طرف سے نہیں یہ لے کے آ رہے۔ اس کے اندر یہ کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے، ذرا یہ دیکھیے آپ، آسٹریلین احمدیہ مسلم سیلیبریٹ آسٹریلیا ڈے، یہ دیگر کچھ تصاویر جس کے اندر آسٹریلیا کا جھنڈا بڑے پیار محبت سے اٹھائے ہوئے، اور اس صاحب کو آپ یاد رکھیے گا جو اس میں دائیں طرف کھڑے ہیں۔ یہ ایک ویڈیو بھی ہے، میں اس کا نام بتا دیتا ہوں، آپ چاہیں تو سرچ کر کے آپ کو مل جائے گی، لنک بھی ہم نیچے ڈال دیں گے۔ کرنٹ افیئر، ٹھیک ہے، اس نام سے ایک چینل ہے اور فیس بک کے اوپر بھی ہے، اس کے اوپر بھی آپ کو یہ ریسنٹلی 3 گھنٹے 4 گھنٹے پہلے پبلش ہوئی ہے ویڈیو، اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بروشرز آپ بانٹتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں اس کے اندر، اور اسی طرح سے یہ لوگ مل جل کے سیلیبریٹ کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب ہمارے ناظرین ایک سوال اکثر کرتے ہیں، اور جو کہ میں وہی سوال ایک شیخ صاحب سے کروں گا کہ شیخ صاحب جناب، یہ جب باری آتی ہے کسی بھی بیرونی ملک کی، کسی کنٹری کی، آسٹریلیا ہو وہ کوئی بھی اور ملک ہو، تو وہاں یہ احمدیہ کمیونٹی اپنی مکمل وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے نظر آتی ہے ہمیں، اور ملکہ برطانیہ کے تو یہ جس طرح سے بیعت کہتے ہیں خلیفہ صاحب، وہ بھی کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے ریاست پاکستان کی، تو یہ ایسا واحد ملک ہے شاید میری معلومات کے مطابق کہ جس کے خلاف ان کو ہمیشہ آگ اگلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک طرف کہتے ہیں لو فار آل ہیٹریڈ فار نن، لیکن یہ ایک واحد کنٹری جب آتا ہے تو یہاں ساری ہیٹ ان کی اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود گھنٹی کے نشان پہ کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں لنک دیے ہیں ہمارے کچھ دیگر چینلز کے، ان کو ضرور وزٹ کیجیے گا، انہی کے اندر موجود ہے لنک فیس بک اور ٹویٹر کا، وہاں بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بننا چاہتے ہیں ہمارے چینل کے ممبر، جوائن کا بٹن دیا ہوا ہے، اس پہ کلک کر کے ٹیم کا حصہ بن جائیے، اور اگر وہ بٹن نظر نہیں آ رہا تو آپ ہمیں patreon.com کے اوپر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ اگر لگ جائے آپ کو اچھی تو لائک کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ ہر جگہ شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہر اچھی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ احمد کریم شیخ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام، تھینک یو فاروق، تھینک یو۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جب اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ آسٹریلین جو انڈیپینڈنس ڈے ہے وہ 26 جنوری ہے، تو بہرحال، اور وہ جو تصاویر آپ نے دکھائی ہیں وہ 5-6 سال پرانی ہیں، اور آج بھی مطلب وہ آلریڈی منا چکے ہیں وہ ایکچولی ہمارے ہاں۔ میرے پاس 26 ہے، غالباً آپ کے پاس بھی 26 ہوگا، لیکن آسٹریلیا جو ہے اس کا ٹائم جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، وہ منا چکے ہوئے، تو اس کی بھی ویڈیو مطلب میڈیا کے اوپر پڑی ہوئی ہے، جو انہوں نے سیلیبریشن کی ہے وہاں پہ، جو انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں۔ اب آپ نے بات جو ایک کی ہے ستیلی ماں کی، ستیلی ماں میں پاکستان کو کہہ رہا ہوں اب اس کے ساتھ تو یہ محبت اصل ماں والی دکھانے سے رہے کہ آپ کا سوال کہ پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں، دوسرے جس ملک میں بھی رہتے ہیں یہ لوگ اس کی وفاداری کا دم بھرتے ہیں، اور اس کے لیے یہ باقاعدہ طور پہ کہ حب الوطنی جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کا یہ راگ الاپتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ احمدیہ یہ جو گروہ ہے یہ اپنے مفادات کو ہمیشہ عزیز رکھتا ہے، جیسے کہ ہر انسان رکھتا ہے، لیکن بعض تقاضے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو اپنے تقاضوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے مفادات کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کی حالت اس، مجھے مجبوراً یہ مثال دینی پڑے گی، اس بندریا جیسی ہے کہ جس کے اپنے پاؤں جلنے لگے تو اس نے اپنے ہی بچوں کو اپنے پاؤں تلے لے لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، پاکستان کے اندر یہ لوگ رہتے ہیں، پاکستان کے اندر ان کے اکابرین کی، ان کے مقدس مقامات ہیں، ان کی قبریں ہیں، ان کے نبی کی بیوی وہاں دفن ہے، ان کے خلیفہ دفن ہیں وہاں پہ، ایک نہیں 2 باپ بیٹا، مرزا بشیر الدین محمود اور مرزا ناصر۔
ये लोग जहाँ पे इनके मुफाद पे निजात पड़े और ये उसी थाली के अंदर सुराख करते, लेकिन जहाँ पे इनको थोड़ा सा भी मुफाद मिले, ज़रा सी भी इनकी पजीराई हो, तो ये तलवे चाटने से भी गुरेज नहीं करते। कुछ असूल होते हैं, कुछ बातें होती हैं। मिसाल इसकी यूं ले लें कि फ्रांस ने कहा जी कि अब हिजाब नहीं आप ले सकते, तो इन्होंने कोई फ्रांस के आइन की ऐसी की तैसी नहीं की, उसे तहवाला नहीं किया, उस पर कोई तनकीद नहीं की, उसको पांव तले नहीं रौंदा, बड़ी खामोशी से, सिर्फ इसलिए कि अगर ये बात करेंगे इनको फ्रांस से निकाल दिया जाएगा। तो क्या ये पाकिस्तान को हक नहीं है कि पाकिस्तान की ये गद्दारी करें, कानून पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी करें, तो पाकिस्तान इन पर कोई कदगन न लगाए या इनके खिलाफ कदम न उठाए। पाकिस्तान का लेकिन शेख साहब मैं आपको रोकूंगा। रियासत पाकिस्तान तो इनको उल्टा है, इनको बचा रही है इनको प्रोटेक्शन भी दे रही है। इनको रिसेंटली ये हुआ था, हमने इस पे वीडियो भी बनाई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बाकायदा इनको दावत दी कि आप आइए, कलीती कमेटी के अंदर बैठिए, आप अपनी प्रेजेंटेशन रखें हमारी असम्बलियों के अंदर। ये नहीं आए। मैं वही अर्ज करने लगा था कि पाकिस्तान का तो ये है कि पाकिस्तान इनके साथ इन तमाम हरकतों के बावजूद इनको बचा रहा है। देखें, अवाम जो है ना पब्लिक पाकिस्तान की, वो ज़रूरी नहीं है कि सारे पढ़े लिखे हों, ज़रूरी नहीं है कि सारे इतने लिबरल हों, सारे इतना बड़ा दिलो दिमाग रखते हों। पाकिस्तान की जो 80% आबादी है, उसका ईमान भी जज्बात पर है, उसकी ज़िंदगी का दारोमदार भी जज्बात पर है, उसके अपनी रिश्तेदारियाँ, अपने ताल्लुकात एक दूसरे के साथ जो है, उसकी बुनियाद भी जज्बात है। वो जज्बात में आके हर काम करते हैं। तो जब जज्बाती तौर पे वो ये सोचते हैं कि ये गैर मुस्लिम है, इन्होंने नबूवत पे डाका डाला है, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं जिससे हमारे दीन को नुकसान पहुंचता है, तो वो बेकाबू हो जाते हैं। तो उनसे बचाने के लिए पाकिस्तान ने जितनी इनकी मदद की है, पाकिस्तान जितना इनका साथ दे रहा है, शायद ही कोई दे रहा हो, लेकिन ये उसके बावजूद दुनिया के हर मुल्क में जाकर, जहाँ पे भी जाके ये रेफ्यूज लेते हैं। हालांकि यहाँ पे भी एक बड़ी मज़े की बात बता दूँ कि दुनिया के जिस मुल्क में भी जाके ये असाइलम, रेफ्यूज, अजील, जो भी नाम दे लें इसको, जब उसके लिए ये दरख्वास्त देते हैं, तो जो शख्स दरख्वास्त दे रहा है, हालांकि उसकी जान को कोई ख़तरा नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर जितने ज़्यादा, मतलब आप कह लें कि मुआशी तौर पे ताकतवर हैं ये लोग, और जितनी तादाद बकौल इनके सबसे ज़्यादा वहाँ है, तो बाहर आके कि वो शख्स जाके कहता है जी मेरी जान, उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं। बात ये करते हैं जी हमें लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हमें, अपने जी अकीदे के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक हमें अपनी इबादत करने का हक़ नहीं है, हमें अजान देने का। और क्वेश्चन इज़ दिस, मियाँ तुम आए हो कि मेरी जान को ख़तरा है, तुम्हारी जान को क्या ख़तरा है, तुम्हें क्या नहीं करने दिया। मसला ये है कि अगर तुम्हें अजान नहीं दी जानी जाती, तो क्या आइन जो है तुम्हें अजान देने की इजाज़त देता है? अगर आइन इजाज़त नहीं देता, तो जाहिर है तुम एक ऐसा काम कर रहे हो जो वायलेट कर रहे हो आइन को, तो तुम उसकी जद में तो आओगे। अगर तुम आइन की पाबंदी करते हुए कहते हो कि मुझे मेरी जान को ख़तरा है, कि तुम्हारा हक है, वहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हमें। वो देखें जी हमारी जमात को जी हक नहीं है जी मस्जिद बना सकें, मस्जिद कह सकें। एक चीज़ को तुम रिकॉग्नाइज़ करते हो कि बतौर पाकिस्तानी बाहसीयत इस मुल्क के बाशिंदे होने के, हम इसके कानून की, इसके आइन की पासदारी करेंगे, तो आप उसकी पासदारी वायलेट क्यों करते हो, उसकी खिलाफ वर्जी क्यों करते हो? ये लोग दुनिया के हर मुल्क का दिन मना लेंगे, उसके गुन गा लेंगे, तराने गाएंगे, बाकायदा तौर पे उस मुल्क को बताने की कोशिश करते हैं कि हमसे ज़्यादा वफादार तुम्हारा गुलाम और कोई, हम सबसे बेहतर तुम्हारे जो असल गुलाम है हम हैं। यही मुसीबत अगर पाकिस्तान में अपने आप को मुसीबत समझते हुए ये कर लें थोड़ी सी, कि ठीक है आपके दिल के अंदर पाकिस्तान के लिए मोहब्बत नहीं रही, आपके पाकिस्तान के आइन के लिए आपके अंदर गुस्सा है, इंतकाम है, जो कुछ भी है,
आप कम से कम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को ये तो बताएं कि हाँ, लेकिन नहीं, यकीन करें कि ये लोग, अब मतलब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने कौलो फेल से साबित कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के वफादार नहीं हैं, हम पाकिस्तान के आइन के पासदार नहीं हैं। अगर हैं तो अमली तौर पे साबित कीजिए, जिस तरह ये हैं। आप क्यों नहीं पाकिस्तान डे मनाते? उनको चाहिए कि ये 14 अगस्त को जिस तरह बाकी कम्युनिटीज़, बाकी पाकिस्तानी पाकिस्तान डे मना रहे होते हैं, ये भी उसी तरह पाकिस्तान के तराने गाएं, और बाहर की दुनिया में भी, जहाँ पे भी, जिस मुल्क में भी रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ पे 14 अगस्त को ये बाकायदा तौर पे उसी तरह, तो और इसी तरह की वीडियोस जो है वहाँ का प्रेस जो है वो इनकी दे। लेकिन ये चीज़ आपको कभी नहीं देखने को मिलेगी। अब ये अनफॉर्चुनेट है फारूक कि ये सिलसिला जो है ये सिर्फ एक चीज़ की बुनियाद के ऊपर, हालांकि इनको गैर मुस्लिम करार दिया जाना इनकी जान की हिफाजत के लिए था, क्योंकि इस कल्ट के बानी ने, मौसूफ आजहानी गुलाम कादियानी साहब ने, तमाम दुनिया के, सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं, तमाम दुनिया के मुसलमानों को, जो इनको नहीं मानता उसको काफिर और जहन्नमी करार दे दिया हुआ था, उसको गैर मुस्लिम करार दे दिया। इससे बड़ा जुल्म आप खुद सोचें। अब मुसीबत ये है मुसलमान की कि मुसलमान जो है वो गैर मुस्लिमों के सामने अपनी पोजीशन को वाज़ेह नहीं कर सका, वो इनके जुराइम नहीं बता सके, वो जो इन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं वो नहीं बता सके, कि जिसका इख्तियार नहीं है इस कम्युनिटी को, इसने 1.8 बिलियन लोगों को गैर मुस्लिम करार दिया हुआ है। ये अब किसी तौर पे भी, मतलब इस पे प्रोग्राम आ चुके हैं, इस पे बातें हो चुकी हैं, मेरी पोस्टें हैं फेसबुक के ऊपर। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की क्लियर कट वो शख्स कहता है कि हम पर लाजिम है कि हम गैर अहमदियों को मुसलमान ना समझे। अब इससे पीछे क्या रह जाती है? और अगर वो लोग कोई कदम उठाए तो ये कहना कि जी हमारी प्रोसिक्यूशन हो रही है, ये कहना कि हमारे साथ ज्यादती है, तो इससे बड़ा झूठ और धजल और क्या होगा, फ्रेब और क्या होगा। और मगरबी दुनिया को तो इस चीज़ से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, वो तो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को देखती है, अपने मुफादात जहाँ पे उसके हो उसके मुताबिक ये मगरबी ममालिक और ये ताकतें चलती हैं, उनको इन चीज़ों से कोई ताल्लुक। वरना अगर उनको इंसानी हमदर्दी, मैं इसकी मिसाल यूँ दे देता हूँ कि वो ये मगरबी ताकतें बड़े चैम्पियन जमहूरियत के बनती हैं, तो इस तरह शाम, इराक तबाह बर्बाद ना हो रहा होता, वहाँ पे बच्चे इस तरह न मर रहे होते अगर वाकया ही इनको नौ इंसानी की हमदर्दी। मतलब एक अगर जालिम डिक्टेटर कहीं पे बैठा हुआ है तो उस एक को ख़त्म करने के लिए पूरी 15-20 करोड़ की, 30 करोड़ की, 50 करोड़ की मतलब आबादी मुल्क को ख़त्म कर देना, इससे बड़ा दजल और क्या। जी राइट, थैंक यू सो मच शेख साहब। एक चीज और मेरे ज़हन में आ रही थी कि हमेशा ये देखा गया है कि ये अपने आप को बहुत मजलूम जमात अहमदिया प्रेजेंट करती है, सारा जुल्म इनके ऊपर हो गया, लेकिन एक चेहरा और भी है, ये डुअल फेस्ड हैं, दो चेहरे लेके ये साथ चलते हैं। एक तरफ ये ऑस्ट्रेलिया डे मना रहे हैं, राइट, वहां अपने वफा का और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, जिस तरह से भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ इनका जो लिटरेचर है, अगर उनको पढ़ा जाए तो वो मगरब के बहुत सारे मुमालिक, बल्कि दुनिया की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी जो कौम है क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत, वो उसके बहुत कुछ खिलाफ लिखा है इनके फाउंडर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने। ये वो कभी नहीं उनको बताएंगे, ये कभी भी ये नहीं बताएंगे कि मिर्जा साहब जो है वो तो कहा करते थे कि मैं सलीब को जलाने आया हूँ और उसको तबाह और बर्बाद करने आया हूँ, क्रॉस को। ये वहां पे उठाए फिरते हैं मसाया हैज कम। फारूक, यहाँ पे अब आप बड़े ही भोले बादशाह बन के ये बात आपने सवाल मुझसे कर दिया, इतना जुल्म ना आप करें कि आप, ये पब्लिक करती है सवाल शेख साहब। नहीं, मेरा मकसद ये कहने का है कि आप कह रहे हैं कि ये खुद कहें हाँ जी हम ये जालिम हैं, हम जी आपको ये गाली देते हैं, तो बंदा खुदा ये आपके जुल्म को, आपकी उस बात को नाइंसाफी बनाकर, आपके उस फेल को जुल्म बनाकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, जो कि बकौल आपके जुल्म नहीं है। दूसरी तरफ आप जब हकायक को जानते हैं तो आप अपनी काहली और सुस्ती को इस तरह से कर रहे हैं कि नहीं जी ये तुम खुद बताओ जाके कि हमने ये किया। सवाल है आप क्यों नहीं बता रहे? यहाँ पे मैं मतलब आपके मुसलमान, आपका मीडिया जो मर्जी करे, आई डोंट केयर अबाउट दैट वन। ये उनका फर्ज है आपके मुसलमानों का, आपके मीडिया का, जहाँ पर ये पाकिस्तानी और मुसलमान और इतना कुछ गंद कर रहे हैं, वहाँ ये अच्छा काम कर दें कि इनकी किताबों की असल हकीकत, उसके
ट्रांसलेशंस करके उनकी ज़ुबानों में अपनी एम्बेसीज को, ये आपके जो मौलवी और ये उलमा इतना इतना काम जो करते हैं, चढ़ के मेंबरों पे ये खुतबे देते हैं, इनको चाहिए ये बाहर निकलते हैं तबलीग करने के लिए, ये वेस्ट को बताएं बाहर आके, लेकिन उनको भी अपने मदरसे कायम करने, अपने मुफादात, अपने उन चक्रों का पड़ा हुआ, उनका काम है कि इनका असल चेहरा दिखाएं, बताएं उनको कि लुक एट दिस वन, कि दुनिया में मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर वो सामने रख दी जाए बात मिर्जा गुलाम अहमद की, ही इज द फाउंडर ऑफ हेट्रेड, ही इज द ओनली वन क्लेमेंट ऑफ द नबुआ ऑफ हेट्रेड, ये नफरत का नबी है, नफरत का नबी है। और उसने खुद अपने अंदर लिखा हुआ अपनी किताबों में, वो कहता है जितनी मैं ईसाइयों के खुद साख्ता खुदा मतलब हजरत ईसा के बारे में कि जितनी मैं नफरत करता हूँ, तमाम मुसलमानों की नफरत अगर तराजू के एक पलड़े में डाली जाए तो मेरी नफरत दूसरे पलड़े में सबसे भारी होगी। वो यहाँ तक चला गया, वो शख्स वो यहाँ तक चला गया। और आप मुसलमान सोए बैठे हो और आप ये चाह रहे हो कि वो खुद कहें, यहाँ पे आपको अपनी शेख साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन यही था आपसे, मैं यही चीज चाह रहा था कि देखिए विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं यहाँ आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि सारे उलमा भी एक जैसे नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। अब मैं सबकी नहीं मैं बात कर रहा, मैं ये बहुत बड़े जो चैंपियन बने हुए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं सबको नहीं कह रहा। ये चीज ज़हन में रखें कि जब मैं ये बात करता हूँ तो ये चीज वाज़ेह होनी चाहिए कि मैं ये जो चैंपियन नाम निहाद सिर्फ अपनी और रुतबों के लिए इस्लाम का नाम बुरा कर रहे हैं ना, कि नाम लेके ये अपना कारोबार करें, वो उनकी बात कर रहे हैं। सो शेख साहब, मेरा क्वेश्चन ये था कि यूथ जो है आजकल, नौजवान नस्ल, उनके अंदर एक करंट भी मौजूद है, वो कुछ करना भी चाहते हैं, और खास तौर पे ये सोशल मीडिया हमारी यूथ की बहुत बड़ी तादाद इसके ऊपर मौजूद है। अब गो के वो कुछ भी कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा बहुत सारा गंद कर रहे हैं, और मैं एग्री करता हूँ। ये अब मैं नाम लूंगा किसी एक प्लेटफॉर्म का तो शायद कोई गुस्सा कर जाए, लेकिन हो रहा है, वाकई ऊट पटांग हरकतें हो रही हैं, ये वो हो रहा है। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि जहां ये सब आप कर रहे हैं, किस तरीके से, कैसे वो नौजवान सोशल मीडिया को यूज करते हुए दुनिया को ये हकायक बता सकते हैं, जो कि हमारी बतौर मुस्लिम जिम्मेदारी है भी सही। दिन रात हमारी रियासत को कोसा जाता है, हम सबको इतनी बड़ी तादाद में हम मौजूद हैं, हमें एक कोने में लगा दिया जाता है कि आप काफिर हैं, हम असली मुसलमान हैं। तो कैसे एक नौजवान इसको लेके चल सकता है? थैंक यू फारूक। अब चूंकि आपने बात यहाँ पे ले आए हैं, वो बहुत से मैं जो अब नाम लेने लगा हूँ, इसमें बहुत से मैं ज़ाती तौर पे मतलब मैं उनसे मिल चुका हुआ हूँ, और मुझे उन पे, अब वो चाहे मेरी बात का गुस्सा कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, ये उनकी स्वाबदीद, लेकिन मैं उनको किसी ऐसे रंग में नहीं कह रहा, मैं उनको उनका काम, उनका फ़र्ज़ याद दिलाना चाह रहा हूँ कि देखिए, बात सुनिए कि बैलेंस करना चाहिए आपको। अगर आप, मिसाल मैं दे देता हूँ, मेरी एक से ज़ायद मरतबा इनसे मुलाकात हो चुकी है, जनाब जवेद अहमद गामदी से। अब वो अपना सिलसिला फैलाने के लिए, वो सिर्फ इस चीज़ के लिए मुंह नहीं खोलते कि अगर मैंने अहमदियों को या उनके हकायक बयान कर दिए तो मैं वेस्ट की नज़रों में बुरा बन जाऊंगा और वेस्ट मेरे सामने ले आएगा, देखें जी आपने जी ये एक बात कर। वो बंदा है खुदा, जब तुमने एक इंसाफ की बात करनी है, हक की बात करनी है, तुमने इस्लाम का असल चेहरा देना है, तो उसके साथ जो इस्लाम के नाम को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम के तशख़्ख़ुस को तब्दील कर रहे हैं, दोज हु आर चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ इस्लाम, कि ये अहमदी ग्रोह जब इस तरह की हरकतें कर रहे थे, व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन टू दी इवन टू द यंग वन, जो आप कह रहे हैं उनको ही आए। और मैं ये कहूँगा कि नौजवानों को कि दे शुड आस्क, ये जो आपके हैं ताहर कादरी साहब, उनसे, ये गामदी साहब, इनसे, इसी तरह दूसरे ये जो जमील साहब हैं, इन लोगों से ये लोग सवाल करें कि मियाँ आप ये बताओ कि जब इस शख्स ने 1.5 बिलियन मुसलमानों को गैर मुस्लिम करार दिया, उसके साथ ईसाइयों के बारे में इसने ये बात की कि ईसाइयत एक बदबूदार मज़हब है, ईसाइयत का जो खुदा है वो माज़अल्लाह मेरी इतनी नफ़रत के काबिल है। सवाल ये है कि आपको किसने इख्तियार दिया कि आप किसी से नफरत करें, और किस बेस पे आप करें? आप उनसे डिसएग्री करते, आप कहें कि जी मेरे नज़दीक कि ये कहना कि हज़रत ईसा खुदा थे गलत है, ये सही नहीं है, बिल्कुल आपका हक है कि आप, लेकिन आप नफरत करें, आप उसके साथ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें, उनको इस तरह की गालियाँ दें, मैं तो यहाँ दोहरा भी नहीं सकती। सो इनको चाहिए, अब गामदी साहब से आप पूछेंगे तो वो पॉलिटिकल जवाब दे के इसको गोल कर जाएंगे।
हालांकि उनको चाहिए कि इस चीज़ का साफ कहें कि हाँ मैं ये यहाँ पे ये कहता हूँ, मैंने पढ़ा है। उनको तस्लीम करना चाहिए, या ये कहना चाहिए कि नहीं जी मैंने नहीं पढ़ा, मेरे इल्म में नहीं है। और अगर ये बात उसकी तरफ मंसूब की जा रही है और कोई मुझे दिखा देता है कि उसके अपने कलम से है कि वो शख्स हज़रत ईसा के बारे में ये कहता है और ईसाइयत के बारे में ये कहता है, तो गलत कहता है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। ये गांधी साहब को कहना चाहिए, ये कादरी को कहना चाहिए, ये जमील को कहना चाहिए, ये इन हजरात को ये बात करनी होगी। लेकिन मुसीबत ये है, इनको ये है कि हमने एक दफ़ा मुंह से ये लफ्ज़ निकाल दिया तो ये ग्रोह जो है ये उठ के हमारे खिलाफ दे देगा, और इनकी पॉलिटिकल इतनी अप्रोच है कि ये हमारे वीज़े बंद करा देंगे, हम जो मदरसा खोलना चाहते हैं। एवरीबॉडी इज़ लुकिंग देयर ओन इंटरेस्ट। उनको अपने मुफादात अजीज़ हैं, फारूक, इनको अपने मुफादात अजीज़ हैं, बट द यंग वंस दे मस्ट आस्क टू दीज पीपल कि बात सुनिए, आप रिलीजियस लीडर तो बनते हैं, आप ये सारा कुछ बनते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस सब्जेक्ट। इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। शेख साहब हमारे पास टाइम कम है, लास्ट मिनट्स हैं जी। राइट, ठीक है, मैं किसी हद तक आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन आजकल हर नौजवान के हाथ में मोबाइल है, और चले हर एक ना सही लेकिन एक अक्सरियत है जो जानती है वीडियोस कैसे बनाना है, उसको पोस्ट कैसे करना है, लोगों के अंदर शेयर कैसे करना है। मैं ये जानना चाह रहा था कि वो लोग अपने तौर पे अगर कुछ करना चाहें तो ये उनको कहाँ से मिल सकता है ये सारा मटेरियल, और ये वो किस तरीके से लोगों के सामने ये रख सकते हैं। अब लेकिन चूंकि वक्त की कमी है, मैं चाहूंगा कि आप हमें दोबारा टाइम दें, इसके ऊपर एक पूरी वीडियो हम बनाएं। अगर हमारे नाजरीन चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखिए, हम वो वेबसाइट्स बताएं जहां इनका मटेरियल पड़ा हुआ है, उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ताकि नौजवानों को पता चले कि दुनिया के सामने किस तरह से हमने इन हकायक को रखना है। श्योर, ये थैंक यू सो मच फॉर दिस वन। एक तो मैं ये अर्ज करूंगा कि मेरा नंबर आपके सामने है, साथ है, दे कैन आस्क मी। एक PDF जो तैयार की हुई है, आई कैन सेंड देम, कि मैं उनको दे सकता हूँ, उसमें से वो देख लें। दूसरा, आई कैन गिव देम from where they can see the all literature of this MDA community, इनका पूरा सारा मिल सकता है। और क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, they can contact me, contact you, ज़ैतून चैनल से ये राब्ता कर लें तो हम बताने को तैयार हैं। मतलब इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। इवन मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि अगर ये नौजवान तबका, इफ दे विल आस्क मी कि जी आप आके हमें बता दें, बिलीव मी, इफ आई वुड हैव टू ट्रैवल फ्रॉम कनाडा टू ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका, एनीवेयर, मैं नहीं उनसे कहता कि जी आप मेरा खर्च नहीं, I'll come by myself, it's okay, I can do this। इस चीज़ के लिए मैं हाजिर हूँ। ओके, जज़ाकल्लाह शेख साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं वीडियो, एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे, पूरा इन डिटेल आपको चीजें समझा देंगे। आज के लिए इतनी इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।